Good morning, dear students. Today in this class, we will have a discussion about chapter 2 of English literature. The name of this chapter is Traveling with Grandfather's Zoo, and it is written by Ruskin Bond. Children, Ruskin Bond was born in 1934. He is an Indian author of British origin, and his novels, poems, short stories, and essays displayed his love for nature, particularly the mountains. He wrote his first novel, The Room on the Roof, at the age of 17. He won the Sakta Academy Award, the Padma Shri, and the Padma Bhushan. His literary works include The Angry River Rain in the Mountains and the Scenes from a Writer's Life. Award winning films have been made based on his original stories A Flight of Pigeons and The Blue Umbrella. So, let's read the story of this chapter. Do you have pets or would you like to have pets? Read about the adventures that take place when family decides to travel with few of their exotic and uncommon pets. क्या आपके पास पेट्स हैं या आपको पेट्स बहुत पसंद हैं? रीड अबाउट द एडवेंचर्स. चलिए हम उन एडवेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे. द टेक प्लेस व्हेन अ फैमिली डिसाइड टू ट्रेवल. जब फैमिली अपने उन एग्जॉटिक और अनकॉमन पेट्स के साथ में ट्रेवलिंग करने के बारे में प्लान बनाती है. ऑल अब्रॉड श्रीक्ड पॉपे, ग्रैंड मदर्स पेट पैरट, as the family climbed aboard the Lucknow Express. So here all abroad stands for a warning call made to passengers of a bus, ship or train when ready for the departure. Okay. पॉपे जोर से चिल्लाता है ऑल अब्रॉड. ग्रैंडमा का जो पेट पैरट है. एज द फैमिली क्लाइम्ड अब्रॉड टू द लखनऊ एक्सप्रेस. पूरी फैमिली जो है वो लखनऊ एक्सप्रेस में बोर्ड कर चुकी थी. व्हेन वी वर मूविंग फॉर सम मंथ्स फ्रॉम देहरा टू लखनऊ. वो देहरा से लखनऊ की तरफ मूव कर रहे थे कुछ मंथ्स के लिए. एंड एज ग्रैंड मदर हैड इंसिस्टेड ऑन taking her parrot along, grandfather and I insisted on bringing our pets too. So as grandmother had insisted, grandmother ने insist किया था on taking her parrot along, अपने parrot को साथ लेके जाने के लिए. grandfather and I insisted on bringing our pets too. grandfather और मैंने भी insist किया कि हम भी अपने pets को अपने साथ लेके जाएंगे. A teenaged tiger, grandfathers and a small squirrel mine, but we thought it prudent to leave the python behind. So उनके pets कौन कौन से थे? A teenaged tiger, grandfathers ये grandfather का pet था, and a small squirrel mine जो small squirrel थी वो मेरी थी. But we thought it prudent to leave the python behind. तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सेंसिबल होगा, मतलब अच्छी बात हो गई अगर हम पाइथन को यहीं पे छोड़ देते हैं. तो दे वर ऑल्सो हैव अ पाइथन विद देम. इन दोज डेज ट्रेन्स इन इंडिया वर नॉट सो क्राउडेड. उन दिनों में इंडिया में जो ट्रेन्स थी वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी. एंड इट वॉज पॉसिबल टू ट्रेवल विद अ वैरायटी ऑफ क्रिएचर्स. सो इन द ट्रेन they can travel with their animals. Creature means animals. Grandfather had decided to do things in style by traveling first class, so we had a 4-berth compartment of our own. And Timothy the tiger had an entire berth to himself. So grandfather ने decide किया कि हम अपने accordingly वहाँ पे first class में travel करेंगे. तो हमने 4-berth compartment जो थे हमने बुक किए, अपने ले लिए थे. And Timothy the tiger, their tiger name was Timothy, had an entire berth to himself. और उनका जो टाइगर टिमोथी था उसने पूरा का पूरा बर्थ लिया था. Okay. Later everyone agreed that Timothy behaved perfectly throughout the journey. After they were in the train, they all observed that Timothy is behaving perfectly throughout the journey. उन्होंने देखा कि टिमोथी ने पूरी जर्नी, मतलब जितनी उनकी ट्रेवलिंग थी
बिल्कुल भी मिसबिहेव नहीं किया. इवन द गार्ड एडमिटेड दैट ही कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर पैसेंजर. इवन गार्ड ने भी ये चीज़ एडमिट की कि उन्होंने इससे अच्छा पैसेंजर पहले नहीं देखा. नो स्टीलिंग फ्रॉम वेंडर्स, वेंडर से उन्होंने कुछ नहीं चुराया. नो शाउटिंग एट कुलीज, ना ही वो कुलीज के ऊपर चिल्लाए. नो बार्किंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टीज़, रेलवे प्रॉपर्टीज़ मतलब रेलवे के ऊपर अगर उन्होंने कुछ देखा है तो वहाँ भी कुछ भी तोड़फोड़ नहीं की है. नो स्पिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और ना ही प्लेटफॉर्म पे उन्होंने स्पिटिंग की है. स्पिटिंग मीन्स थूकना. All the same, the journey was not without incident, and before we reached Lucknow, there was excitement enough for everyone. तो द जर्नी वॉज विदाउट एन इंसिडेंट. हमारी जर्नी में ऐसा कुछ भी घटना नहीं हुई, कुछ भी ऐसा एक्सीडेंटल सरप्राइजिंग कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज हमारे साथ इतने सारे पेट्स थे. तो मतलब कि हमारे लखनऊ पहुंचने तक देयर वॉज एक्साइटमेंट एनफ फॉर एवरीवन, और हर कोई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी था. टू बिगिन विद, पॉपी ऑब्जेक्टेड टू वेंडर्स एंड अदर पीपल इंटरफेस देयर हैंड्स इन थ्रू द विंडोज़. तो पॉपी ने बाहर वेंडर्स को देखा एंड अदर पीपल्स को देखा कि वो कैसे इंटरफेयर कर रहे थे विद देयर हैंड्स, अपने हैंड्स को विंडो में से बाहर निकालते हुए. कोई वेंडर से कुछ ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है. बिफोर द ट्रेन हैड मूव्ड आउट ऑफ द देहरा स्टेशन, जब देहरा स्टेशन से ट्रेन मूव करने लगी थी उससे पहले. ही हैड निब्ड 2 fingers एंड ट्वीक्ड अ टिकट इंस्पेक्टर्स ईयर. तो उसने क्या किया, निब्ड मीन्स बिट शार्पली, काट लेना. तो उसने क्या किया, उनकी 2 fingers को काट दिया. ही निप्ड द 2 fingers एंड ट्वीक्ड अ टिकट इंस्पेक्टर्स ईयर्स. और जो टिकट इंस्पेक्टर था उसके जो ईयर्स थे उसको उसने पुल किया, मतलब खींचा. नो सूनर हैड द ट्रेन वॉज अ स्क्रिल्स पैराडाइज. ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर्स हैविंग टू एग्जामिन हिज सराउंडिंग्स. तो जल्दी ही ट्रेन चलना शुरू हो गई. जो मेरी स्क्रिल थी, इमर्ज्ड मीन्स केम आउट, मतलब बाहर आना. तो मेरी जो स्क्रिल थी वो बाहर आ गई. ऑलमोस्ट ऑल द पैसेंजर्स हैविंग, तो गाड़ी में जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए थे उनके पास अपने अपने रोस्टेड पीनट्स थे. बिफोर द ट्रेन पुल्ड आउट ही हैड नो डिफ़िकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स विद बोथ चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप. तो मेरी जो स्क्रिल थी उसने वहाँ पे बैठे हुए लोगों को और बच्चों को अपना अच्छा दोस्त बना लिया. एंड इट वॉज एन आवर बिफोर ही रिटर्न टू आवर कंपार्टमेंट. और वो 1 घंटे से पहले हमारे कंपार्टमेंट में वापस मुड़ के नहीं आई. हिज टमी ऑलमोस्ट बर्स्टिंग, इतना खा चुकी थी वो कि उसका टमी अब बर्स्ट होना शुरू हो गया था, मतलब कि फटने को तैयार था. आई थिंक आई विल गो टू स्लीप, मुझे लगा कि मुझे सोने जाना चाहिए. सेड ग्रैंडमदर ने कहा. कवरिंग हर सेल्फ विद द ब्लैंकेट, अपने आप को एक ब्लैंकेट से उन्होंने कवर करते हुए ऐसा बोला. एंड स्ट्रेचिंग आउट ऑन द बर्थ अपोजिट टिमोथीज, इट्स बीन अ टायरिंग डे. और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही आज टायरिंग डे था, थका देने वाला दिन था. आर नॉट यू गोइंग टू ईट एनीथिंग, आस्क्ड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने ग्रैंडमा से पूछा कि क्या आपको कुछ नहीं खाना है. आई एम नॉट हंग्री, आई हैड सम सूप बिफोर वी लेफ्ट. तो ग्रैंडमा ने कहा कि मुझे भूख नहीं है, बिकॉज जब हम घर से निकले थे तो मैंने कुछ सूप पी लिया था. यू टू हेल्प योर सेल्फ फ्रॉम द टिफ़िन बास्केट, कहते आप बास्केट में से टिफ़िन ले लीजिए और कुछ खा लीजिए.